कल कितने तक किया सीगा तुसी? हाँ जी यही सीगा context affecting the process of communication. What is the process of communication? कल आपा किया सीगा communication. What do you mean by communication? Two-way process. ठीक है आपस how you are communicating with each other. Now what is the context affecting process of while interacting or communicating? A major part is played by the context as it changes the meaning of the message significantly both in positive and negative manner. Just now when we were discussing कि असी एवी communication होगी if you are going to talk to sir, ठीक है ना, positive or negative. The way the context, what is your context? Your context is planning out a trip. ਤੁਹਾਡਾ context है, ठीक है, की करना है. The way you communicate, किस तरह करोगे? If you go and ask permission, जिस तरह मैं कह रही थी ना, तो that is positive. If you go and असी चल रहे हैं, ठीक है, इस संडे से क्लास ही ला रहे असी चल रहे हैं, that will be negative कि ऑर्डर ही देना है. So the way you are presenting your context, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ context ਹੈ, the way you are doing it, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ. ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਲਾਨ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, the way you tell the message, that is the context, positive or negative way. Before relaying a message, the sender must consider the different context which hinders the message and meaning. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲੇਗਾ. ਹੁਣ ਫॉर एग्जांपल ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਫਰੈਂਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਬਿਜ਼ੀ ਫਰਮ 1 ਵੀਕ, ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, BPO's ਕਾਲਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਮ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਹਰ ਕਾਲ ਕਿ ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਟੈਲ ਮੀ, ਠੀਕ ਹੈ. ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕਹੋ ਵਾਈ ਆਰਨਟ ਯੂ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਮੀ, ਵਾਟਸ ਰੋਂਗ ਵਿਦ ਯੂ, ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? पहली गल है मैं किस तरह बोली, आई डिडंट अंडरस्टैंड कि इंटरव्यूज़ ली जा रही है, रात भर BPO's की इंटरव्यूज़ रात को होंगी हैं ऑलमोस्ट, तो शी मस्ट बी टायर्ड इन द मॉर्निंग स्लीपिंग, ठीक है ना. इट डजंट मीन कि साड़ी फ्रेंडशिप खत्म होगी या लव बिटवीन बोथ ऑफ अस इज ओवर. तो व्हाट शी विल डू, व्हाट शी विल से, शी विल टेक इट इन अ नेगेटिव वे कि आई डोंट ट्रस्ट हर, मैं ट्रस्ट ही नहीं किया, ठीक है ना. सो इट विल बी इन अ नेगेटिव वे. सो व्हाट इज द पॉजिटिव वे, आई शुड थिंक अबाउट हर, ठीक है. सो हाउ वी आर डूइंग द मैसेज पार्ट, आई शुड इनकरेज हर कि ठीक है बच्चे तू इंटरव्यूज़ ली जा रही है, तू कर रही है, आई एम विद यू, कोई गल नहीं, बाद च गल कर लेंगे. अगर कोई प्रॉब्लम मैनू फेस हो रही है शी कैन आस्क मी लेटर, अगर मैं टुट के पै जा शी विल टेक इट इन अ नेगेटिव वे. सो हाउ यू आर प्रेजेंटिंग दैट कंटेक्स्ट, पॉजिटिव या नेगेटिव. सो एवरी सोसाइटी, सॉरी सोशल कंटेक्स्ट, सब तो पहली चीज़ होती है सोशल कंटेक्स्ट. व्हाट इज सोशल कंटेक्स्ट? सोशल ग्रुप देखिया जाए तो सारे एक सोशल कंटेक्स्ट ही हैगे. पर्सनली तो एक दो दे हैगे ने कि हाँ पर्सनली असीं एक दूसरे को जान गए, वी बिकेम फ्रेंड्स या जो भी है, ठीक है. बट सोशली यू ऑल आर इंटरेक्टेड विद ईच अदर, यू ऑल नो ईच अदर सोशली. इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट as it covers up the stated and underrated rules, norms and notions followed by society. We all know that being social animal, human beings prefer to survive in group and communities. Naturally, ਹੁਣ अगर एक बच्चे का ही होवे, एक बच्चे दी हुण जो एक दो बच्चे बैठे ने, आई विल विल बी रिलक्टेंट टू टीच. बाकी सारे होंगे, सोशल ग्रुप होएगा, देन ओनली ए क्लास इज पॉसिबल. सेम वे वेन एवर यू आर लिविंग इन अ सोसाइटी, कोई बिल्डिंग तुसी लैंदे हो किते रेंट पे या तुसी किसी सोसाइटी हो, जिस तरह मैं अपनी गल कर रही हूँ पाम गार्डन से मैं रहनी, उत्थे सारे फ्लैट्स ने, फ्लैट सिस्टम ने. कई अजकल तो लोगों ने अपनी अपनी कोठी बनानी शुरू कर दी है. बट वैन आई started living there 2012 ਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲੈਟ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ. we were the first one to reside in that colony. reside means live in that colony. I was the first one. ਪੂਰੇ ਪਾਮ ਗਾਰਡਨ ਚ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰਾ. ਜਸਟ ਇਮੈਜਿਨ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ, ਐਮ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਪਾਮ ਗਾਰਡਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਰੈਡ ਮੈਂਗੋ ਦੇ ਨਾਲ. ਪੂਰੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲੈਟ. ਤਾਂ ਹਾਊ ਵਾਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ? ਆਈ ਨੀਡਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਕੱਲੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ सिक्योरिटी की जरूरत, तो नैचुरली मैं अपने रिश्तेदारों को इकट्ठे करके अपने नाल रखांगी सो दैट आई एम सिक्योर. हुण जदों सोसाइटी भर गई है, उत्ते वाला फ्लैट भी विक गया, उहदे उत्ते वाला विक गया, सानू पता है बिल्डिंग दे विच उत्ते दो फैमिलीज़, एक फैमिली मेरे उत्ते रहिंदी, उहदे उत्ते मतलब दो फैमिलीज़ रह रही हैं ते एक थल्ले मैं सिंगल रह रही हूँ. तो चलो रब ना परमात्मा ना करे रात बर रात कोई मैनू जरूरत है कुछ भी, आई कैन कॉल अप समबडी, हुंदा ही है, ठीक है. बट इफ यू आर नॉट लिविंग इन अ सोसाइटी, यू आर नॉट लिविंग इन अ कम्यूनिटी, even if a boy needs something, यानी कि सिर्फ गर्ल नूं जरूरत पैंदी है,
हाउ विल ही कम्यूनिकेट इफ नोबडी इज लिविंग? तुसीं एक महल्ले च कल्ले रह रहे, इक्को मकान है, रात बरात तुहानूं भी कोई लोड़ पै सकदी है। when you are not living in a society group, how will you communicate? So man is a social animal। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਦੀ ਬੁੱਕਸ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਣਾ, ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ BA ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ ਦੀ 3rd 4th ਲਾਈਨ ਹੈ, ਮੈਨ ਇਜ਼ ਅ ਸੋਸ਼ਲ ਐਨੀਮਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਨ ਇੱਕ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਐਨੀਮਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਗਰੁੱਪ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਰ ਲਓ ਟ੍ਰਿਪ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਯੂ ਨੀਡ ਅ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਯੂ ਨੀਡ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟੂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਵਿਦ ਪੀਪਲ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਗਰਾਤਾ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਇੰਜੋਏ। ਚਲੋ ਭਗਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਆਪਸ 'ਚ ਹੱਸ ਖੇਡ ਵੀ ਲੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਭਗਤੀ ਘੱਟ ਹਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, that I know। ठीक है, so you will be interacting with the people all together, so that is why we say that man is a social animal। As a result, multiple unwritten rules are taught and followed by these groups depending upon geography, climate requirements for smooth functioning of said group। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ environment 'ਚ ਹੋ, wherever you are working, your work culture means working, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ work culture ਹੈ। ठीक है, so working or whatever it is, you need to interact with people। तो हड्डा interaction होएगा। हुण suppose करो ये बिल्डिंग है पूरी 2 मंजिला 3 मंजिला, सिर्फ अगर सर दे उत्ते होएगे, सर ने सारा कुछ, how will he manage? Only one person handling the whole thing, so he needs a team, he needs a group of people to work with him। ठीक है, अगर उन्होंने ही सारा कुछ करना हो, it is impossible and you will also not like it। क्या पर्सन ओनर भी है, थले बैठ के काम भी कर रहे हैं, साडी क्लासेस भी, यू विल नीड अ ट्रेनर और अ टीचर और अ गाइड और somebody who is associated with LP, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾसेस ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਲੈ ਸਕੇ, ਅਦਰਵਾइज ਯੂ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਓਨਰ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ, ਜਾਂ ਚਲੋ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੀ ਕਲਾसेस ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਕਲਾसेस ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਕਿ he does not have LP trainer with him। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, you will not be interested, you will run। ठीक है, हम तो पिछले सेमेस्टर तो पता है कि yes, he has got somebody who is directly linked with LP, so that is why you are associated, still associated, right? So all these things matter। बाकी बिल्डिंग से की चल रहा है तो उनको मतलब नहीं। So you need a society, you need environment, geographical locations, climate requirement for smooth functionings of said groups। ठीक है, ਹੁਣ ਅਗਰ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਵੀ ਚੱਜਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣੇ ਥੋੜਾ ਸਰਦ ਗਰਮ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੋਗੀ ਤਦ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ, ਕਲਾਈਮੈਟਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੰਨਣਗੇ। Every society refers to certain ways and activity which communication must be aware to ensure right kind of impact for its interactions। हर एक चीज़ दी society is responsible, whatever interactions you do with people। Suppose you are interacting with each other, या तो हमारा interaction तो हमारे trainer नाल, teacher नाल, बाकी teachers नाल, staff नाल, sir दे नाल, किसी भी related, तो हमें LPU दे notifications भी आंदियां रहंदियां ने। ठीक है ना, so ओदे regarding if you want information, what type of interaction you have। ठीक है ना, you know very well if a notification pops up, तो हमें पता है ਤੁਹਾਡਾ ID हैगा, पासवर्ड हैगा। ठीक है ना, ਤੁਸੀਂ नहीं खुल रहा, कुछ भी improper हो रहा है, you can contact him, you can contact me, क्या नहीं हो रहा, we can guide you। social interaction in what way? two-way communication हो गया। one way will be you are interacting with only one group, one person, yeah, your own self। two-way communication is most important even in a social interaction group। next is relational context, which depends upon relationship history of the communicator with others। if the person shares a friendly and cooperative past with the other, then their communication will begin on a friendly tone and chances of polite harmonious conversations are there and no seed of any misunderstanding। relationships ਦੇ ਉੱਤੇ based ਹੁੰਦਾ ਹੈ। what type of relationships you share with somebody special in your life। it can be your family, friends or special friends। ठीक है ना, what type of communication, communication नहीं, special family, friends। अगर तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग कदों होंदी है, हुणे मैं एग्जांपल दिता, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। मिसअंडरस्टैंडिंग अवॉइड करने लिए कम्युनिकेशन इज द की। हर रोज़ कम्युनिकेट करो, हर रोज़ एक दूसरे बारे जानकारी रखो, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी।
चाहे 5-10 मिनट भी एक दूसरे नाल गल करो, बट यू शुड कम्यूनीकेट। इफ कम्यूनीकेशन इज नॉट देयर, रिलेशनशिप समटाइम्स मिसअंडरस्टैंडिंग आती है, हौली हौली एंड अप हो जाता है। सो यू शुड कम्यूनीकेट, कम्यूनिकेशन इज मस्ट, ठीक है, टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग। On the other hand, if two share an unhappy past, then from the beginning a kind of negative tone will be giving way to every possibility of misunderstanding. हाँ, अगर two way relationship हैगा, two people, अगर उन्हों का पहले तो ही unhappy past है, तो की होएगा? Misunderstanding crop up होगी। ਉਹਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਪਾਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। सो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रॉप अप हो सकती है रिलेशनशिप्स दे विच। सो फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू, हाँ जी ऐसा नाम दा लॉकेट, व्हाट यू नीड टू डू, कम्यूनिकेशन। कम्यूनिकेशन शुड बी देयर, यू शुड ओपन अप। अगर तुहाडे मन च डाउट है, मेरे वर्गा पर्सन अद्धी रात के 2 बजे भी कॉल करके कहेगा मैनू ये डाउट है, सो क्लीयर कर, हुणे ही कर। जदी नहीं कर सकती तो तेरे दरां च आके हुणे ही वजदी है, हुणे ही क्लीयर कर। सो कम्यूनिकेशन शुड बी देयर। अगर कम्यूनिकेशन नहीं है तो रिलेशनशिप अगे नहीं वर्कआउट करता, ठीक है। हुण सब तो वधिया कम्यूनिकेशन मेरा रहा है पिछले 1 महीने दे विच, जदों कोई पर्सन आउट ऑफ स्टेशन सी, ठीक है, अपने पिंड गई हुई सी, तो इन्ना कम्यूनिकेशन स्ट्रॉन्ग सी कि रात के 11 बजे भी पिक्चर्स भेज के मैम अभी चेक करके बताओ कैसी लग रही है, देखो कितना वधिया कम्यूनिकेशन सी, अभी बताओ कब तक जवाब दोगे। रोही नहीं, मैं कभी मैं कुछ काम कर रही हूँ, वो काम छोड़ो, ये जल्दी बताओ अर्जेंट क्या है वो कि मैं क्या, मैं कहा मेरी माँ तू, तो उस वक्त वह वीडियो चेक करके उन्होंने मैसेज करता है बहुत बढ़िया लग रही है। ये ड्रेसेस जो नहीं ली थी उसके बारे में अब तक कमेंट क्यों नहीं किया, कभी करती हूँ जी, ठीक है ना। सारे कामकार छड्ड के सारा कुछ होने नाल कम्यूनिकेट किया, नहीं तो आंदे सारी मेरा सिर फाड़ देंगी, ठीक है। सो कम्यूनिकेशन इज अ की फॉर एनी रिलेशनशिप। एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज वन हु कीप्स हिज इमोशंस अंडर कंट्रोल। ए भी याद रखो, अपने इमोशंस भी अंडर कंट्रोल रखो। इवन इफ यू फील लाइक क्राइंग, कीप योर इमोशंस अंडर कंट्रोल। कई बार होता है, सो व्हाट यू कैन डू इज, जो तुहानू लगे कि हाँ यू आर ओवरवेलम्ड, व्हाट इज ओवरवेलम्ड, एक दूसरे का मुंह देखने की बजाय पूछ लो, अंदर भर जाना, रोन का दिल करना, अंदर ही ओवरवेलम्ड। गो इन द वॉशरूम, फेस अपना धो, अंदर माड़ा जा रो लो, बाहर आओ एंड स्माइल। यू शुड नो हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस। अगर तुहाडे इमोशंस के उत्ते कंट्रोल नहीं ना हैगा, तुहाडा किसी चीज़ से कंट्रोल, ट्राई टू कंट्रोल योर अर्जेंट इमोशंस आल्सो। एंड कम्युनिकेट्स विद ओपन माइंड, लिबरल एटीट्यूड, इग्नोरिंग द पर्सनल नोशंस। अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स नो, अपने पर्सनल नोशंस नो थोड़ा जा काबू च, थोड़ा नहीं सारा ही काबू च करके, इमोशंस को काबू च करके कैरी ऑन योर डेली लाइफ। गेट अप दा मतलब है जिस तरह सवेरे गियर अप, अपने इमोशंस को अंडर कंट्रोल, पूरे दिन में फेस करने लिए तैयार हो जाओ। ईवन इफ यू आर अर्जिंग टू क्राई अप, तद भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करके अपनी लाइफ में लीड करो। क्या लग रहा है मैं ही लिखिया, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी दी, इफ यू हैव मल्टीपल फाइट विद योर नेबर इन द पास्ट ओवर मल्टीपल रीजनस। इतने नेबर्स बारे लिखा, बट आई एम अ पर्सन हु बिलीव्स दैट यू शुड नो द नेम ऑफ योर नेबर बट नेवर टॉक टू देम। कभी फाइट नहीं हुई। हुण आई मूव टू दिस हाउस इन 2012, 2017 च नेबर्स आए, 19 साल बिल्डिंग खाली सी, ते ਉਹਦੇ बाद मैंने उन्होंने अज तक सिर्फ नाम पता है कि सो एंड सो फैमिली लिव्स, इन्हों का नाम है मिस्टर एंड मिसिज दिस, उत्ते मिस्टर या मिस दिस, दैट्स ऑल। आई डू नॉट टॉक टू देम एनी, कदी भी अज तक उन्होंने सिर्फ दिख जाते हैं व्हेन एवर आई गो टू माई बिल्डिंग, दे आर स्टैंडिंग डाउन, आई जस्ट इस तरह खड़े रहे करके, पर मैं अपना कभी मुँह नहीं खोलिया, कभी कोई गल नहीं की, तो मिसअंडरस्टैंडिंग आ ही नहीं सकती, ठीक है। आई वॉज टॉट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, when I was a child, my mother has taught me. My mother was not a Punjabi, so she will not teach me all this too. Mostly होना गली मोहल्ला chit chat. She always taught me you should know the name of your neighbors. थानू पता होना चाहिए neighbors का name, but you should never talk to them till your deathbed. Do you understand the meaning? मतलब समझ आया? हाँ जी, यही वाले दस्ते, हाँ जी बोलो, सुनाई नहीं दे रहा, बोलो की समझ आया?
बोलो, बोलना नहीं आता। एक रखांगी ਉਹਦੀ आवाज बाहर आ जाएगी। हाँ जी बच्चे बोलो, की समझ आया? मतलब ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ कि you should know the name of your neighbors। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ neighbors ਦਾ name ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, but never talk to them till your death bed। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ till your death bed, ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ। मतलब कि उन्होंने मतलब ना रखिए कोई सोच never talk। that is what I do ना, I will not tell you to do it। ਤੁਹਾਡੀ families to you all talk, ठीक है ना। this is what I was taught when from my childhood, you should know the name of your neighbors। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, but never talk to them till your death bed। ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। पूरी बिल्डिंग की, पूरे पाम गार्डन के जिन्ने आस-पास रहंदे सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि आज कदी किसी नाल गल ही नहीं करदी तो मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग किवें होई, नेगेटिविटी किस तरह आई कि मैं कदी किसी नाल गल ही नहीं करदी ते बस किस तरह होई। बोलदे ने सारे एंड आई केयर टू हूट्स, मतलब हाँ आई केयर टू हूट्स, मतलब आई डोंट केयर। मेरे चाचा की आदत है ना, चाचा चाची की बाहर खड़ के एज सुन एज आई कम ना, मैं जब अपने लेन से एंटर कर दी, मैं चाचा को देखने बाहर अंदर चल कर मैं कहूँ नहीं स्टैंड आउट कम अंदर आ, बिकॉज आई डोंट लाइक इट। आई यूज्ड टू चेक माय फादर आल्सो, मेरे पापा की भी आदत सी बाहर खड़ के आई यूज्ड टू चेक हिम कि प्लीज गो इनसाइड, आई डोंट लाइक इट, आई डोंट वांट यू टू स्टैंड व्हेन आई कम होम, आई डोंट वांट यू टू स्टैंड आउट, गो इनसाइड। आई एम लाइक दैट, माय मदर वाज लाइक दैट। Right. So next is cultural context। What is cultural context? Includes various aspects of identity such as race, gender। ये बहुत बड़ी चीज़ है सारी countries में। Race, gender issues, girls ली है, boys ली है। Race. What do you mean by race? What do you mean by race? ना नहीं बचना। रेस का मतलब होता है दैट्स यू बिलोंग टू विच रेस, यू बिलोंग टू कम्युनिटी ऑफ एशियंस। वी ऑल आर एशियंस। एशियन मतलब एशिया दे हो ना कॉन्टिनेंट, देन एशियंस, देन इंडियंस, ठीक है। रेस तो हड्डी पता लगी कि कितनों स्टार्ट होगी, इंडियंस, देन नॉर्थ इंडियन, फलाना फॉर एग्जांपल साउथ इंडियन, ठीक है। यू आर फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया, तुसी कितनों बिलोंग करते बच्चे? यूपी। सेंट्रल इंडिया, सेंटर से अंदर सेंट्रल इंडिया, तुसी सेंट्रल इंडिया, ठीक है। ए नॉर्थ इंडियन, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा साउथ का तो साउथ इंडियन, ठीक है। नॉर्थ प्लस साउथ इंडियन, मेरे वर्गा। मदर वाज फ्रॉम अ डिफरेंट रेस, माय फादर वाज अ डिफरेंट रेस एंड हाफ ब्रिटिश, मदर वाज अ ब्रिटिश, राइट। सो but I would love to consider myself as a Punjabi British, because my papa was a Punjabi। So and really truly speaking, I have been to many places जिस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ, 90% ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ठीक है 90% ਨੂੰ। but I would personally, मैं कह रही personally, travel any place around the world। I love Punjab। I think Punjab is the most beautiful place on earth। ऐ मेरी पर्सनल फीलिंग है, मैं किसी और को नहीं थोपी। आई थिंक सो कि पंजाब तो ज़्यादा ब्यूटिफुल कुछ नहीं है, चाहे कल्चर हो, रेस आई वुड कंसिडर बिकॉज आई एम हाफ पंजाबी, चाहे कल्चर हो एंड लुक्स, पंजाब इज वेरी ब्यूटिफुल। सारे कैनेडा अमेरिका मेरी नज़र आ जाए, नथिंग इन फ्रंट ऑफ most of Southeast Asian, we all are Southeast Asian, India is Southeast Asian country, ठीक है। most of the Southeast Asian people living abroad या working abroad या living in South India consider Punjab as the most beautiful place, remember it, ठीक है। so nationality, ethnicity, sexual orientation, class and ability, ठीक है। किस तरह का इतने सैक्शुअल ओरिएंटेशन का मतलब है जेंडर, किस तरह जेंडर तुम अपना डिफाइन करते हो। बॉय सुपीरियर मन्या जाता है, गर्ल इनफीरियर, कई जगह इनफीरियोरिटी सुपीरियोरिटी कॉम्पलैक्स आ जाता है, और कई जगह कहते कि नहीं नारी शक्ति पापा की बड़ी, ठीक है ना। एक दिन आया भी सीगा, आई थिंक आई सॉ ऑन फेसबुक
कि पापा की परी को पहले स्कूटी चलाना सिखाओ समथिंग, शी बैंग्ड इनटू समथिंग, ठीक है, पापा की परी हवा में उड़ी, समथिंग लाइक दैट. सो इट इज कि जेंडर ओरिएंटेशन, इतने सैक्शुअल ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि जेंडर ओरिएंटेशन, हाउ यू सी एट योर जेंडर, अपने जेंडर ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ किस इक्वालिटी ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਚ, इट शुड बी इक्वल. फॉर मी बोथ द जेंडर इज इक्वल, चाहे वो बॉय चाइल्ड होवे चाहे गर्ल चाइल्ड होवे, इट शुड बी इक्वल. हाउ यू परसीव इट, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਸੀਵ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, that is upon your own choice. Okay. People from marginalized and dominating cultures have different ways of transmitting their thoughts and quite sensitive on how others react to their words. Yes, of course. यही चीज़ मैं थोड़ा शुरू तो कहनी सी. People from marginalized and dominating culture. ਜਿਹੜੇ dominating culture ਦੇ dominating families ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? What do you mean by dominance? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਉੱਠ बैठ ए कर वो कर, अपना हुक्म चलाना. डोमिनेटिंग फैमिलीज मोस्टली, आई विल नॉट नेम इट, बट मोस्टली मैं देखा है कि जी पेट्रीआर्कल सोसाइटीज़ ने, देयर आर टू सोसाइटीज़, पेट्रीआर्कल एंड मेट्रीआर्कल. थोड़े पिछले सीगा व्हाट डू चैप्टर 8 सी ना, थोड़े पिछले सेमेस्टर से पेट्रीआर्कल सोसाइटी, पेट्रीआर्कल वर्सी एंड मेट्रीआर्कल, कितना नहीं पिछला सेमेस्टर. What do you mean by patriarchal? हाँ जी सीगा, ए वर्ड सीगा, बुक मेरे को होने भी पई है कवर से, सेकंड रो से पई, जा लेके दिखा दूँगा, वर्ड भी दिखा दूँ कितने पे है. What do you mean by patriarchal? फादर साइड में बोलते पेट्रियार्कल. मेट्रियार्कल मदर साइड. हाँ ठीक है, फादर साइड पापा, हिंदी से समझ लो पापा पेट्रियार्कल, मम्मी मेट्रियार्कल, हिंदी पंजाबी से समझ लो. सो पेट्रियार्कल सोसाइटीज कई जगह मैं देखी ने डोमिनेंस होती है, पर कई जगह साउथ इंडिया मेट्रियार्कल सोसाइटीज आर मोस्टली देयर, लाइक माय मदर्स साइड मेट्रियार्कल, उत्थे मदर्स की डोमिनेंस होती. द गर्ल इज गिवन द हाईएस्ट प्लेस इन द फैमिली, ठीक है. इत्थे होंदा जिथे पेट्रियार्कल है उत्थे मोस्टली बॉयज ने, पर मेट्रियार्कल सोसाइटीज द गर्ल्स आर गिवन द हाईएस्ट प्लेस, ठीक है. दे कैन ओन एनीथिंग, मतलब उन्होंने नाम प्रॉपर्टीज भी हो जाती है, जिस तरह नेचुरली मेरा एग्जाम्पल है, आई गॉट एवरीथिंग, ठीक है. सो इट इज अ फैक्ट मेट्रियार्कल एंड पेट्रियार्कल सोसाइटी, एंड हाउ दे कल्चर तुहाडा किहो जिहा, तुहाडी ब्रिंगिंग अप. देखो एवरी चाइल्ड इज बॉर्न इन होम, तुहाडी जिहड़ी फैमिली ब्रिंगिंग अप, तुहाडा जो भी बिहेवियर है, वट एवर बिहेवियर यू ओन, एनी इत्थे शरीफ जे बन के बह जाते, असल च जिहड़ा तुहाडा बिहेवियर है, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू हैव बीन ब्रॉट अप, किस तरह तुसीं पले बड़े हो, ठीक है. वाई आई एम डिफरेंट फ्रॉम एवरीबडी, नैचुरली आई हैड अ डिफरेंट ब्रिंगिंग. माई फादर्स इन्फ्लुएंस वॉज लेस, पंजाबी इन्फ्लुएंस थोड़ा घट है, ओनली मैंने पंजाबी बोलनी आती, ठीक है, बट आई हैड अ डिफरेंट वे ऑफ ब्रिंगिंग अप. So I will never compare myself to my cousins, जिहड़े मेरे चाचे ताए दे बच्चे हैं, उन्हां नाल मेरा कंपैरिजन नहीं है. रीजन तुहाडा कल्चर एक आ जाता है, पेरेंट्स तुहाडे पेरेंट्स दोनों इक्को ही कल्चर दे ने, योर मदर इज यूपी, हाँ, एंड योर फादर इज ऑल्सो फ्रॉम द सेम स्टेट, ठीक है. योर फादर इज फ्रॉम पंजाब, मदर इज फ्रॉम पंजाब, सो योर ब्रिंगिंग अप विल बी सेम. इस केस मदर इज फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड, फादर इज फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड, बच्चे की ब्रिंगिंग अप किसी को स्टैंडर्ड नहीं होगी, बाकियां दी उन्हां दी सेम है तुहाडे वाली, ठीक. सो दैट्स व्हाई डिफरेंट एंड दैट इज नॉट माय फॉल्ट. एंड रिएक्ट टू वर्ड्स, दैट टाइप ऑफ पीपल हु आर फ्रॉम अ डिफरेंट कल्चर, ओ दे आर मोर सेंसिटिव, देयर थॉट्स एंड हाउ दे रिएक्ट टू अदर्स विल बी डिफरेंट. ऑलवेज रिमेंबर इट, ठीक है. फ्रॉम अ डिफरेंट कल्चर, सेम कल्चर जे हैगे ने, फॉर एग्जाम्पल you all of you are Punjabi for example, ठीक है, ਤੁਹਾਡਾ bringing up इस तरह का है, ठीक है, ਤੁਹਾਡਾ react sensitivity एक तरह की है, same time. जो person, if a person is from different culture, oh the way of talking, way of judging things and sensitivity and how this person will react to your words will be entirely different, तो different होगा, it will never match up to the same level. आगे समझ.
Historically, suppressed culture mostly had a persuading undertone in all their communication, as they are concerned over acceptance from others because they had faced biased attitude earlier. Historically, पुराने ज़माने से history दी अगर गल करो, तो की हैगा suppressed culture. What do you mean by suppressed culture? Suppress होता है जिस तरह मैं कहूँ बैठ उठ ये कर वो कर, suppress करना, किसी को dominate करना. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ. ਵਾਈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਹੈਵ ਫੇਸਡ ਵਾਟ ਹੈਵ ਦੇ ਫੇਸਡ ਬਾਇਸਡ ਐਟੀਟਿਊਡ. ਵਾਟ ਇਜ਼ ਬਾਇਸਡ? ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 1-2 ਚੈਪਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ. ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ. ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਫੇਵਰੇਟ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਲਾਈਨਸ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਬਾਇਸਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅਨਬਾਇਸਡ? ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ, एवरीबडी हूँ जो कुछ भी मैं क्लास से बोलती है फॉर मी एवरीबडी इज इक्वल, हर एक इक्वल मैसेज जा रहा है, थोड़े चैप्टर के रिगार्डिंग सब कुछ इक्वल है, ठीक है ना. सो इट इज़ नॉट बायस्ड. सो अनइक्वलिटी कितने नहीं. सो बायस्ड जोड़े होंगे ने फॉर एग्जाम्पल इन अ सोसाइटी, फॉर एग्जाम्पल इन अ कल्चर, फॉर एग्जाम्पल इन अ ग्रुप, वो की होएगा? दे विल बी अंडर डोमिनेंस एंड दे विल रिक्वायर, वो की रिक्वायर करते हैं आफ्टरवर्ड्स, दे विल रिक्वायर, उन्होंने बड़े सारे इशूज़ होंगे अंदर, तो उन्होंने एक्सैप्टेंस ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ. ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਨੀਡਿੰਗ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਫਰੋਮ ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ. ਜਿਸ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਿਓ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੇਤ ਲਿਓ ਕਿਤੋਂ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਫੜਿਓ, ਕੱਸ ਕੇ ਫੜ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਐਸੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ, ਐਂ ਡਿੱਗੇਗੀ. ਬਲਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਰੇਤ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੋ, ਬਸ. ਜਦੋਂ ਰੇਤ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਐਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਨਾ. ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਲੈ ਉਹ ਰੇਤ, ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਉੱਡੇਗੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਹੇਗੀ. ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਟੇਕਿੰਗ ਇਟ ਕੇਅਰਫੁਲੀ विद केयर, ठीक है, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਹੇਗੀ. ਸੇਮ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਪੀਪਲ. ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਐ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਛੱਡ ਦਿਓ. ਅਗਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਏਗੀ. As a result, they tend to fall from misunderstanding quite easily, especially when other side follows an air of supremacy. Misunderstanding कदों होएगी? जब biased condition होएगी, दूसरा person supremacy करे कि हाँ भाई मैं ही मैं हूँ, तू नहीं. देख लेंगे बस, मैं नहीं कर रही, 5 मिनट रह, ठीक है. सो when the supremacy is there, अगर कोई तुम्हारे उत्ते कंट्रोल करे, तो हमें supremacy दिखाए, you will try to find out things कि कौन तुम्हानू sympathize करे, कौन तुम्हारे नाल sympathy करे. You will try to find out those type of things, ठीक है. In current international community, intercultural communication cannot be avoided as it will lead to divided worlds. So take cues from cultural while interacting with different ethnic. आजकल दी डेट च international community, intercultural वही हो रहा है. intercultural, many types of people are living in Punjab, Himachal, UP, Bihar, Central India, South Indians, North Indians तो बहुत कट रह गए हैं, ठीक है. और इंटरनेशनल कल्चरल पीपल. सो व्हेन यू आर इंटरैक्टिंग विद अ मिक्स ग्रुप, ऑलवेज फाइंड वेज एंड मीन्स टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग, सो दैट इंटरकल्चरल ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੇਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ. ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ. ਆਈ ਹੈਵ ਲਰਨਡ ਅ ਲੋਟ ਫਰੋਮ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਟੋਟਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ. ਆਈ ਹੈਵ ਲਰਨਡ ਅ ਲੋਟ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ठीक है. एंड इवन अदर कम्यूनिटीज़ तो भी सीखने को सानू बहुत कुछ मिलता है. हाउ पीपल फ्रॉम अदर कम्यूनिटीज़ who are, because now Punjab is filled up with lots of communities, ठीक है. So we learn from each other, असी एक दूसरे तो ही सीखते हैं, ठीक है. तो इंटरकल्चरल या इंटरनेशनल कम्यूनिटी इंटरकल्चरल, ठीक है, अवॉइड नहीं हो सकता क्योंकि असी इंटरैक्ट करते हैं, एथिकली इंटरैक्ट. अवॉइड की करना चाहिए? मिसअंडरस्टैंडिंग. अंडरस्टैंडिंग लाइक मेरे नाल ही तुहानू ग्रो करना चाहिए. Being sensitive is diversely and historically background of cultural provides an edge of prevalence by the communicator even the most crowded gathering. सब तो ज़्यादा crowd वाली gathering भी होवे तो ओदे विच भी तुसी आराम नाल misunderstanding दे बगैर historical अलग-अलग historical backgrounds ने तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ. You all do not belong to the same family. हिस्टोरिकली भी तुसी अलग अलग फैमिली तो तुहाडे फॉर एग्जाम्पल तुहाडे दादे पड़दादे उन्हां दे भी दादे पड़दादे, मतलब तुहाडी पहली पुश्त जिथों तुहाडी फैमिली स्टार्ट हुई है. इट कैन बी 100 years बैक, इट इज़ 100 years. तो उन्हां दा बिल्कुल कल्चर इज़ डिफरेंट,
ठीक है। सेम वे इस बच्चे का कल्चर डिफरेंट है, इस बच्ची का कल्चर डिफरेंट है, बट यू आर इंटरैक्टिंग सेम वे। इको कम्यूनिटी च रह रहे हो, मीनस पढ़ रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, इको कल्चर इको जगह रह रहे हो पंजाब च फॉर एग्जाम्पल इस जगह। सो वैन यू आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, यू आर टॉकिंग टू ईच अदर, इंटरैक्टिंग, ਤੁਹਾਡਾ अपना ਜਿਹੜਾ रिच कल्चर है जो ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਝਲਕੇਗਾ, 100% ਝਲਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਝਲਕੇਗਾ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਝਲਕੇਗਾ। So when it will be mixed up together, you will learn something new from this girl, this boy, he will be learning from two of you. Same is the whole group, whole community. When you are all interacting with each other, you will be learning from each other. इस बच्ची का कुछ और हैगा historical background, ठीक है ना। When she will be talking to you, इन्हां दे जिन्ने गुण ने तुसी देखोगे, तुसी सीखोगे इस बच्ची तो कुछ, she will be learning something from you all, ठीक है। Same with everybody, समझ आई? चलो टाइम हो गया।